اب جب کہ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں، سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے، تمہاری یہاں آمد بڑی پریشان کن ہے میرے لیے۔ میں کیا مدد کر سکتا ہوں تمہاری؟ مجھے بتاؤ کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ویسے یہاں ذرا ایک سوال کا جواب اور دے دو، کیا تم نے لائسنس حاصل کر لیا ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ بہت اچھا کیا، یہ تم نے بہت ہی اچھا کیا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ عامر جلالی، یہی نام تھا اس بد نصیب شخص کا جس نے کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کی، لیکن ان کامیابیوں سے مغرور ہو گیا اور میں نے سوچا اس نے سب کچھ کر لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ فیروز گاتا اتنا معمولی آدمی نہیں ہے جتنا اس نے تصور کر لیا تھا۔ اس کی پشت پر بہت ذہین فتین لوگ موجود ہیں۔ ہاشم ابراتا جیسے شخص سے ٹکر لینا معمولی بات نہیں ہے، اور میں تو یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف فیروز گاتا ہی کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ پس پشت جو کچھ ہے وہ ہاشم ابراتا بھی جانتا ہے، اور فیروز گاتا کے خلاف کام کرنے والے بھی۔ ہاشم ابراتا نے اپنے طور پر ایک نفسیاتی گر استعمال کیا تھا، یعنی گووے کا قیام، جسے باغیوں کے لیے کھلی جگہ قرار دے دیا گیا تھا۔ بلا شبہ یہ ایک نفسیاتی نکتہ تھا، اور ہاشم ابراتا نے سوچا ہوگا کہ گووے میں ہونے والی کارروائی ہی اس کے خلاف بغاوت کا پورا منظر پیش کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فیروز گاتا بالکل بے وقوف تو نہیں۔ بے شک گووے میں بغاوت کو جنم دیا گیا اور اسے باغیوں کا علاقہ قرار دے دیا گیا، لیکن کیا فیروز گاتا یہ بات نہیں جانتا تھا کہ ہاشم ابراتا کے لوگ گووے میں داخل ہو سکتے ہیں اور ہاشم ابراتا کو فیروز گاتا کی ساری کارروائیوں سے آگاہ کر سکتے ہیں؟ چنانچہ اس نے حالات بدل دیے، نقشہ ہی تبدیل کر دیا، طریقہ کار بالکل بدل دیا۔ اب یہ جگہ صرف دکھاوا رہ گئی ہے، اور یہاں ایسی کارروائیاں ہوتی ہیں جن سے باغیوں کی کارکردگی کا پتہ چل سکے، لیکن وہ سب مصنوعی ہوتی ہیں، اور جو کارروائی فیروز گاتا کرنا چاہتا ہے اس کی ہوا بھی یہاں نہیں پہنچ سکتی۔ یہ اطلاع بھی تمہارے لیے عام ہو سکتی ہے۔ فیروز گاتا کے وہ تمام نمائندے یہاں سے ہٹ گئے ہیں جو در حقیقت اس کے لیے کام کر رہے تھے، اور اب اگر تم گووے کے چپے چپے کی تلاشی لے لو تو تمہیں یہاں کچھ نہیں ملے گا، سمجھے؟ یہاں ایسا ایک بھی آدمی موجود نہیں ہے جس سے فیروز گاتا تک پہنچنے کے امکانات روشن ہو سکیں۔ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں نے متحیرانہ انداز میں کہا، تو پھر؟ اور اس کے جواب میں پروفیسر سارکو بہت دیر تک خاموش رہا۔ پھر اس نے کہا، میری زندگی بار بار خطرے میں پڑ جاتی ہے، حالانکہ اب میں اس دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں کھونا چاہتا۔ بھلا بتاؤ، میں اپنی زندگی خطرے میں ڈالوں اور اس کے بعد بھی مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہو؟ میری بھتیجی ہے اور میں ہوں، بس ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں۔ گووے میں میری قیام گاہ بحالت مجبوری ہے، صرف ہاشم ابراتا کے وفادار کی حیثیت سے۔ میں یہاں مرا ہوا ہوں، ورنہ یہ بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ یہاں قدم قدم پر میری بچی کو بھی خطرہ ہے۔ میں یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں، مگر بلا وجہ تم سے یہ سب کچھ کہنا فضول ہے۔ تم تو ویسے ہی ایک غیر ملکی ہو۔ ہاں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس بارے میں بتانے کے لیے۔ اب اگر کوئی آخری مہرہ رہ گیا ہے تو وہ صرف ایک ہے، اور اگر تم اس تک رسائی حاصل کر لو تو شاید آگے کام بن جائے، پروفیسر سارکو نے کہا، اور میں مسلسل سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ سارکو تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے کہا، نگانا ساردا کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ نہیں، یہ نام میرے لیے اجنبی ہے۔ نگانا ساردا فیروز گاتا کی بہن ہے، جڑواں سگی بہنیں۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو بے انتہا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نگانا ساردا اور فیروز گاتا کے درمیان جو اختلافات پھیلا ہوا ہے اور جس کی بنا پر بے شمار زندگیاں ضائع ہو چکی ہیں وہ کوئی حقیقی حیثیت رکھتا ہے تو سمجھنے والے کی حماقت ہے۔ دراصل یہ بھی فیروز گاتا کی ایک چال ہے۔ نگانا ساردا اس کی سگی اور جڑواں بہن ہے، دونوں کے درمیان ذہنی رشتے ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ ذہنی رشتے اور جسمانی رشتے، دونوں ایک ہی انداز میں سوچتے ہیں، ایک ہی انداز میں جیتے ہیں، پھر یہ شدید اختلاف کیا معنی رکھتا ہے؟ دنیا کے لیے یقینی طور پر تو وہ کہانی سچ ہوگی، لیکن پروفیسر سارکو اچھی طرح جانتا ہے کہ اصل کہانی کیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ نگانا ساردا فیروز گاتا کی مخالف بن کر جن لوگوں کو قتل کرا بیٹھی وہ اس کے اپنے آدمی نہیں تھے، بلکہ صرف کرائے کے ٹٹو تھے جنہیں بہتر معاوضے دے کر اس کام پر آمادہ کیا گیا۔ دنیا یہی جانتی ہے کہ نگانا ساردا اور فیروز گاتا کے درمیان زبردست ٹھنی ہوئی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ بھی فیروز گاتا کے لیے ایک کام تھا، اور یہی کیفیت فیروز گاتا کی ہے۔ اس نے جتنے آدمی نگانا ساردا کے ہاتھوں قتل کرائے ہیں وہ سب کے سب کرائے کے تھے جنہیں وہ مروا دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ چند افراد قتل ہوئے اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ دونوں بہن بھائی دو بہترین دشمن بن چکے ہیں، حالانکہ اصلیت اس میں سے 1% بھی نہیں ہے۔ دونوں آج بھی ایک دوسرے کے اتنے ہی دوست ہیں، بس اصل بات یہ ہے کہ کوئی نگانا ساردا تک رسائی حاصل کر لے۔ اگر نگانا ساردا کو شیشے میں اتار لیا تو پھر یہ سمجھ لو کہ فیروز گاتا کے بارے تفصیلات معلوم ہو سکتی ہیں، مگر تم عامر جلالی کی طرح کوئی احمقانہ قدم نہ اٹھانا۔ وہ شخص آج بھی مجھے یاد آتا ہے تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔
अरे बिल्कुल कामयाबी के करीब पहुंच गया था वो। इतनी आसानियां हासिल हो गई थी उसे कि किसी दूसरे को हासिल हो जाती तो फिर नाकामी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था और दुनिया हैरान रह जाती फिरोज गाता जैसा आदमी किस कदर मौत का शिकार हो गया। हाशिम अबराता सिर्फ यही चाहता है ताकि फिरोज उसके रास्ते से हट जाए। बाकी लोगों को वो जब चाहे संभाल सकता है, लेकिन फिरोज गाता ही वो असल शख्सियत है जिसकी जिंदगी हाशिम के लिए खतरनाक है। तो सुनो, मैं बहुत सारी बातें कह गया हूँ। नगाना सारदा एक अजीबो गरीब फितरत की औरत है, हुस्न परस्त, मर्दानगी परस्त। किसी को निगाहों में रख ले तो यूं समझ लो कि वो उसके लिए दीवानी हो जाती है। फितरतन बेवकूफ नहीं है, लेकिन खुद को बेवकूफ ही जाहिर करती है और अगर कोई उसकी गहराइयों में झांकने की कोशिश करे तो उसकी दुश्मन बन जाती है। उसके इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे किरदार बिखरे हुए हैं जो अजनबी हैं, जो उसे अच्छी तरह जानते भी नहीं है, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने के दर पे रहते हैं। बात यह है कि नगाना सारदा को उसके ही पहलू में मारा जाए तो सबसे बेहतर बात होगी, और तुम ये बात गिरा में बांध लो कि बिल आखिर नगाना सारदा ही तुम्हारी मददगार साबित हो सकती है फिरोज गाता के सिलसिले में, वरना अब कोई और रास्ता नहीं रहा है। प्रोफेसर सार्को से तुम अगर कोई फायदा उठाना चाहते हो तो बस असल बात को जहन में रख लेना। इसके अलावा अफसोस मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता। नगाना सारदा से मैं कहाँ मुलाकात कर सकता हूँ? मैंने कहा, एमरूना में, सिर्फ एमरूना में, गोवे से दूर। मैं तुम्हें उसके कुछ ठिकाने बता देता हूँ जहाँ वो जरूर नजर आ जाती है, और उन ठिकानों पर तुम्हारा नजर आना बहुत जरूरी है। बस इसी से तुम्हारा काम बन सकता है। प्रोफेसर सार्को से इससे ज्यादा और कुछ मालूम भी नहीं हो सकता था। वैसे ये नगाना सारदा मेरे लिए बायस दिलचस्पी बन गई थी। न जाने क्या चीज है वो। उसके बाद गोवे में रुकना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन रात का खाना प्रोफेसर सार्को के साथ ही खाना पड़ा। और प्रोफेसर सार्को ने जब मैं वहां से चला तो कहा, फौरन ही गोवे से भागने की कोशिश ना करना। कोई यहाँ आता है तो यहाँ की दिलचस्पियों में काफी अरसा गुम रहता है। नगाना सारदा तक पहुँचने के लिए जल्दबाजी ना करना, ये मेरा मशवरा है तुम्हें। और जब उसका सामना करो तो निहायत एहतियात करना, कहीं यूं ना हो कि वो चौकस हो जाए। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अपने आप पर मुझे कभी नाज नहीं रहा था, लेकिन ये एक सच्चाई थी कि जब किसी के लिए मैंने कोशिशें की थी तो मुझसे दूर नहीं रह सका था। प्रोफेसर सार्को से मुलाकात के बाद अब गोवे में रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन सिर्फ उसकी बात मानने के लिए मैंने मजीद 2 दिन वहां गुजारे और तीसरे दिन गोवे छोड़ दिया। वापस अपने होटल में आया था और उसके बाद मेरा डैम इंजीनियर की हैसियत से किसी से कोई राब्ता कायम नहीं हुआ था। ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि वो लोग मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। लैरी विंच से मुलाकात के लिए जी चाहा था, लेकिन बहुत ज्यादा एहतियात जरूरी थी। प्रोफेसर सार्को ने बताया था कि आमिर जलाली कुछ हमाकतें कर बैठा था, चुनाचे दिल पर जबर किया। अब देखा जाएगा जो कुछ होगा। लैरी विंच से मुलाकात करने का मतलब ये है कि मैं उसे अपनी कार्रवाइयों के बारे में तफसीलात बताऊं और कहीं भी किसी जगह नुकसान मुझे हो जाए। चुनाचे लैरी विंच की जानिब भी मैंने तवज्जो खत्म कर दी और उसके बाद नगाना सारदा की तलाश में मसरूफ हो गया। जो पॉइंट्स मुझे प्रोफेसर सार्को ने बताए थे उन्हें मैंने जहन नशीन किया और उसके बाद ये सोचा कि किस तरह नगाना सारदा को अपनी जानिब रागिब कर सकता हूँ। बहरहाल अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुराकार लाते हुए मैंने उन ठिकानों पर आना जाना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि ये काम चंद लम्हों में नहीं हो सकता, इसके लिए मुझे वक्त सर्फ करना पड़ेगा। और फिर एक पॉइंट पर मैंने नगाना सारदा को देख लिया। 30-32 साल या हो सकता है 35 साल औरत हो, लेकिन कमाल का हुस्न पाया था। बेशक स्याफाम थी, लेकिन इतने खूबसूरत खदोखाल मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। अगर रंगत को नजरअंदाज कर दिया जाता तो उसे दुनिया की हसीन तरीन औरत कहा जा सकता था। इतने ही सुबक और नमकीन नकूश थे उसके, और इसी मुनासबत से उसने अपने जिस्म की परवरिश की थी। उस तक पहुंचना तो वैसे भी एक जरूरी काम था और इसके लिए जो भी कोशिशें हो जाएं कम हैं। चुनांचे मैंने अपने तौर पर उन कोशिशों का आगाज कर दिया। वो एक बिलियर्ड टेबल पर खेलने उठी तो मैंने भी वहां पहुंचकर अपने फन का मुजाहरा शुरू कर दिया और पहली ही कोशिश कारगर साबित हुई। वो मुझे देखती रही तौसीफी और पसंदीदा निगाहों से, और उसके बाद जब खेल खत्म हुआ और मैंने बेहतरीन कामयाबी हासिल की तो उसकी एक खादिमा ने मुझे उसका पैगाम दिया, खातून नगाना तुम्हें अपनी मेज पर तलब करती हैं। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर उठकर खातून नगाना के पास पहुंच गया। गर्दन खम करके मैंने बहुत ही शाइस्ता और बहुत मुहज्जब लहजे में कहा, इतनी हसीन औरत अगर मुझे जहन्नुम में भी बुलाती तो भला मुझे जाने से क्या इनकार हो सकता है। तुम बिलियर्ड के बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। मैं जो खेल भी खेलता हूँ बहुत अच्छा खेलता हूँ, वरना खेलता नहीं। खुद पर बहुत ज्यादा एतमाद है तुम्हें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेहनत करता हूँ बहुत कम, लेकिन बहुत मुअस्सर। गुफ्तगू का अंदाज भी खूबसूरत है। यहाँ के तो मालूम नहीं होते। आपका हूँ, दिल न चाहे तो तस्लीम ना करे। मैंने जवाब दिया और वो खिलखिला कर हंस पड़ी। शक्लो सूरत बहुत अच्छी है तुम्हारी, बातें इससे भी ज्यादा खूबसूरत करते हो। पसंद आए।
क्या पियोगे? जहर, मैंने जवाब दिया और वो मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखने लगी। अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती तो इस अहमकाना ख्याल को दिल से निकाल देना। मैं सचमुच जहर मंगवा दूंगी तुम्हारे लिए। खातून अगर ये समझती हैं कि मैं उनके हाथों से पेश की हुई किसी शय को पीने से इनकार कर दूंगा तो इब्तिदा कीजिए। आप देखेंगी कि मैं इस जाम पर गौर भी नहीं करूंगा जिसमें जहर होगा। नहीं, तुम जहर दिए जाने के काबिल नहीं हो। मुझसे दोस्ती कर लो। मेरा नाम नगाना सारदा है। खुशकिस्मती को दूसरा नाम दे सकते हैं तो आप मुझे बता दीजिए। मैंने आपको इससे पहले नहीं देखा था, लेकिन अगर देख लेता तो यकीन कीजिए अपनी तमाम तर कोशिशें आपकी दोस्ती के हुसूल के लिए वक्फ कर देता। उसने अपना खूबसूरत हाथ मेरे हाथ में देते हुए कहा, किस नाम से तुम्हें पुकारा जाए? फाइक दादा, मैंने जवाब दिया। खूबसूरत, कहाँ के बाशिंदे हो? और जवाब में मैंने सादगी से अपने वतन का नाम ले दिया। वहीं के लगते हो, क्या करते हो? उसने फिर पूछा। कुछ नहीं। मतलब यह है कि मैं कुछ नहीं करता। फिर जिंदगी कैसे गुजारते हो? बस कोई खास तरीका कार नहीं, मुल्कों की सैर करता फिरता हूँ और जरूरियात पूरी करने के लिए वो सब कुछ कर लेता हूँ जिससे दौलत हासिल हो सके। उम्दा, बहुत उम्दा। होना भी यही चाहिए। इंसान अगर आजाद रह सके तो उससे ज्यादा मुसरत की कोई बात नहीं है। वैसे मेरा अपना नजरिया भी यही है। यूँ लगता है जैसे हम तवील अरसे तक दोस्त रहेंगे। अगर मुझे इस बारे में कुछ कहने की इजाजत मिल जाए तो मैं ये कहूंगा कि वो अरसा मेरी जिंदगी के बराबर तवील होना चाहिए। वो हंस दी और उसने मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, इत्मीनान रखो, शायद ऐसा ही हो और तुम तवील अरसे तक जिंदा रहो। यहाँ एमरूना में यकीनी तौर पर तुम यहाँ की कहानियां सुन कर आए होगे। कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस यहाँ आने के लिए मुख्तलिफ तरीका कार इख्तियार करता रहा हूँ। बमुश्किल तमाम यहाँ एक डैम की तामीर के सिलसिले में इंजीनियर की हैसियत से जगह हासिल की और यहाँ तक पहुँच पाया। लेकिन जाहिर है इस सिलसिले में कतई काम का आदमी नहीं साबित हो सकता। जहन्नुम में जो को तुम्हें किसी डैम इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। बस मेरा साथ दो और यूं समझ लो कि अब मेरे और तुम्हारे दरमियान हर तरह की दोस्ती हो गई। मैं किस तरह अपनी किस्मत को दाद दूं? बहरहाल कहाँ रह रहे हो? जमैका में, मैंने जवाब दिया। अच्छा होटल है, लेकिन अगर जगह तब्दील करना चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जरूरत नहीं है, जमैका मेरे लिए मौजू है। हाँ, अगर कभी आप मुनासिब समझें तो मैं आपके हर हुक्म की तामील करूंगा। देखो सुनो, मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते होगे, लेकिन जब कोई मेरे दोस्तों में शामिल हो जाता है तो फिर एमरूना में वो मेरा मेहमान रहता है। चुनांचे इस वक्त के बाद से जो कुछ होगा मेरे हिसाब में होगा। और हाँ, ये भी सुनो, मैं मसरूफ रहती हूँ, लेकिन तुम्हारी जरूरत जब भी महसूस करूंगी तुम्हें इत्तला मिल जाएगी और तुम्हें मेरे करीब पहुंचना होगा। मुझे इस जुदाई का अफसोस होगा जो आपसे रहेगी, मैंने कहा और वो फिर हंस पड़ी। उसकी हंसी भी बहुत खूबसूरत थी। बरतौर मुझे इस तरह कामयाबी हासिल हो जाएगी, इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरे दिन जमैका में मेरे लिए एक शानदार कार पहुंचा दी गई और कार पहुंचाने वाले ने मुझसे कहा कि ये खातून नगाना सारदा ने मेरे लिए भिजवाई है और मैं इसे अपनी पसंद के मुताबिक इस्तेमाल करता रहूं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उस शख्स से उनके बारे में पूछा तो उसने कहा, नहीं, नगाना सारदा के बारे में कौन कह सकता है कि वो इस वक्त कहाँ है। मुझे मुसरत हुई थी। नगाना सारदा की कुर्बत मेरे लिए वाकई दिलकश थी, लेकिन जाहिर है सारे काम आहिस्ता आहिस्ता ही होते हैं। प्रोफेसर सार्को ने मुझसे ये कहा था कि इस वक्त रसाई भी मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल जिस तरह हल हो गई थी, प्रोफेसर सार्को भी सुनते तो हैरान रह जाते। मैं पूरी तरह एमरूना में सैरो सियाहत करने लगा और यहाँ के गोशे गोशे से वाकफियत हासिल करता। गोवे जाने का अब सवाल ही नहीं पैदा होता था। मैंने यहाँ अपनी तफरीहात भी एक ओबाश इंसान जैसी ही रखी थी, ताकि अगर मेरे बारे में कोई मालूमात फराहम की जा रही हो तो मालूमात करने वालों को किसी मुश्किल का शिकार न होना पड़े। उस शाम भी मैं एक छोटे से क्लब में मौजूद था कि एक आदमी मेरे पास पहुंच गया। उसने मेरे शाने पर हाथ रख कर मुस्कुराते हुए मुझे हेलो कहा। मैंने उसे सर्द निगाहों से देखा और कहा, कहो क्या बात है? खातून नगाना सारदा आपको तलब करती है। नगाना सारदा का नाम सुनकर मैंने चौंकने की अदाकारी की और मुस्तैद हो गया। मैंने उस शख्स के साथ अपना खुश्क रवैया भी तब्दील किया और आहिस्ता से बोला, कहाँ है वो? इस वक्त तुम अपनी कार नहीं ले जा सकते, लेकिन इत्मीनान रखो, कार जमैका पहुंच जाएगी और पार्किंग लॉट के उसी हिस्से में खड़ी मिलेगी तुम्हें जहां तुम इसे पार्क करते हो। नगाना सारदा तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने दोनों शाने हिला दिए और उसके बाद उस शख्स के साथ बाहर निकल आया। उसकी कार बहुत खूबसूरत थी। मैं उसके साथ बैठकर चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद कार एक खूबसूरत इमारत में दाखिल होकर उसके पोर्च में रुक गई और उसने नीचे उतरकर दरवाजा खोला और मुझे नीचे उतरने का इशारा किया। सदर दरवाजे से गुजरकर हम एक हॉल में पहुंचे और फिर वहां से एक और खूबसूरत ड्राइंग रूम में जो इंतहाई हसीन साजो सामान से आरास्ता था। उस शख्स ने मुझे बिठाकर आहिस्ता से कहा, मैं मादाम सारदा को तुम्हारी आमद की इत्तला दे दूं। मैं इंतजार करता हूँ। चंद लम्हों के बाद एक अकबी दरवाजे से एक हसीन औरत बाहर निकल आई।
उसका कद दरमियाना था और ये भी अच्छी खासी शक्लो सूरत की मालिक थी। मकामी ही थी लेकिन बड़ी स्मार्ट चाको चौबंद नजर आती थी। उसने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा और फिर बड़े अजीब से अंदाज में बोली, कैसे हो डियर? ठीक हूँ, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया और उसके अकब में देखने लगा। किसे देख रहे हो? मैं यहाँ गालिबन नगाना सारदा का मेहमान हूँ। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखती रही, फिर बोली, और अगर मैं खुद को नगाना सारदा कहना चाहूँ तो? मैं चौंक कर उसका चेहरा देखने लगा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, यह मजाक मेरी समझ में नहीं आया। तुम यहाँ नगाना सारदा के नहीं मेरे मेहमान हो। क्या मतलब? मैं हैरत से उछल पड़ा। और मैं अपना तारुफ तुमसे आसानी से करा दूंगी, लेकिन अभी जल्दी ना करना। मगर मुझे यहाँ नगाना सारदा के नाम पर लाया गया है। हाँ, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम उसके तलवे चाट रहे हो। उसका दाव कच्चा नहीं होता और लोग आसानी से उसके फ्रेम में फंस जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो मैं आपसे नगाना सारदा के बारे में पूछता हूँ मैडम। आप जो कोई भी हैं, मुझे आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैडम, नगाना सारदा कहाँ है? वो जहन्नुम में होगी। मुझे उसे कोई गर्ज नहीं है। और तुम जैसे बेवकूफ नौजवान आखिर कब तक उसके जाल में फंसते रहेंगे? तुम लोग ये समझते हो कि नगाना सारदा के लिए जो कुछ कर रहे हो उससे तुम्हारी जिंदगी बन रही है, लेकिन आने वाला वक्त तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि तुमने अपनी जिंदगी में सबसे बदतरीन लम्हात गुजारे हैं। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।